give a brief introduction of all the panelists that we have. So the first panelist is Shri Ritin Sandhu, son of the soil, the first person from Zanskar to clear JK AS examination. And sir, congratulations for assuming the charge of first SP from Zanskar. And we are very grateful to prepare. And the second speaker is Miss Pema Chodan. Miss Pema Chodan is a social entrepreneur from Zanskar, and she is also the founder of Pema Care, a holistic health and wellness initiative in Zanskar. And other than that, she has a company called Mountain Muse Management, an initiative focused on empowering youth, especially women, through leadership and personality development. Her work is driven by a commitment to advancing health, community development, sustainable social impact in Ladakh. And our third artist is Ms. Shehnaz Parveen, and I think many of you already know her because we had a session yesterday. So just to give you a brief bio of Shehnaz Parveen, is an Taekwondo athlete, coach, referee from Sangku, Kargil, and she is also a black belt. Other than that, she has represented India at World University Games in Chengdu, China in 2023 and Germany in 2025. Other than that, she was also nominated for the state award in Ladakh. And fourth speaker we have is Siring Gapel, an MTech student in structural engineering at IIT Delhi and a civil engineering graduate from Gazukshi opportunity to Gazukshi ngata lam thanu chilukte samne phe kongone ma gespa last chulukle teda nyampo kedana konge entrance exam samni chai dene ke nyampo PM triple S scholarship teo mata kazo evel chungi chilukte na ke nama last gespa jate du te mathe ke na kongone kedana French plus science program 2025 awardee du te na ke na konge India representatives to France la student exchange program dina swale. So this is the bio. First question for the session which start with Samara. I will just drop a small question. Testing ne kule ngata question yu anyampo mang check na ni Samara ki student ne question mangata ne na te wo check demo check. So my first question for Sarin, you are the first one from Zanskar to clear. So how did that happen? क्या एक्सीडेंटली हो गया कि या आपको करते करते पता लगा कि दिस इज व्हाट आई शुड डू टू दिस the platform during the envisioning summit Zanskar. जैसे कि जम्फेल ने कहा है कि how it has happened with me coming into the JK Public Service Commission and serving as a police officer. Actually अगर आप देखें तो मेरा अगर स्कूलिंग पैटर्न देखें तो आई एम गॉन थ्रू अ वेरी सिंपल स्कूल हाई स्कूल असिस्टेंट क्योंकि करशा में मेरा अजमले करशा से था तो मैं ना करशा में स्कूल हाला फिर उसके बाद आई डायरेक्टली वेंट टू बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ले तो वहाँ जाने के बाद क्या होता क्या है अप टू 10th क्लास आपके दिमाग में थोड़ा सा ये रहता है कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर और ए इंजीनियर और इंजीनियर भी छोड़ के डॉक्टर का बड़ा क्रेज रहता है सिंस माय फादर वाज अमची तो मेरे घर में लीनेज में वो अमची सिस्टम आते थे तो जब हमारे इसमें आ गया मतलब क्या कहेंगे मेरे उसमें एज में आ गया तो वो शायद ख़त्म हो गया तो ट्रेडिशनली मैं नहीं कर पाया बट देन आई समहाउ आई वाज वेरी मच फोकस कि मैं सोचा मैं एमजी डॉक्टर बनूंगा बट देन मैं ले जाने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा 1999-2000 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है मैं लद्दाख स्कोर्ट में भर्ती हुआ था ठीक है यही पदम में मैं ये इसी वाले रास्ते में मैंने रनिंग की थी फिर उसके बाद मैं देन मतलब मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लेना देयर वाज अ प्रिंसिपल हेडमास्टर फ्रॉम वोका तो उस वक्त हेडमास्टर ने मुझे जाने से बड़ा गुस्सा किया कि तुम्हें इस तरह के फौजी में नहीं जाना चाहिए है समहाउ उस वक्त क्या था वो भी एक करियर है उस वक्त क्या था हमारे जितने भी हम उम्र है दैट ऑल गोज टू लद्दाख स्क्वाड एंड अदर डिफरेंट थिंग्स तो मैं भी चला गया ले तो ले जाने के बाद किस्मत की बात है
थ्यम्म में कुछ हफ्ता 10 दिन का चक्कर काटते हैं, उसके बाद वो वन फाइन डे बोलते हैं तुम अनफिट हो, दफा हो जाओ, ठीक है। सो आई केम बैक डायरेक्टली फ्रॉम ले, तो मैं वापस करशा स्कूल में पढ़ा। तो उसके बाद मैंने बोला मैं आप कभी फौजी मैं नहीं जाऊँगा। उस वक्त सिमिलरली उस वक्त सांसर में एक पुलिस का भर्ती हुआ था, देन आई आल्सो सेलेक्टेड इन एज ए कांस्टेबल, फिर भी मैं नहीं गया उसमें। देन मैंने ले में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा। पढ़ने के बाद अच्छा सोच पसंद ना तब ले ना सिल हला लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं तब ना चिक चेजुक छापता है। अब क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट वो उर्दू से चलता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। तेने ले सिल पसंद ले में फिर मेरा बहुत सारे चेंजेस आ गया, क्योंकि मैंने एकदम मेरे दिमाग में चेंज आया। सोचते हुए खट्टा, एक तो मैंने पहले बोला मैं मेडिकल मेंशन हाला क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने मेडिकल लिया। मेडिकल में स्थिति देने का फर्स्ट 11th ईयर ना दिशाम ची गजुक मसूम हाला कि उतना मुझे वो हो नहीं पाया। जैसे साइंस को मैं एक नॉर्मल से आंसर से पढ़ के किया, फिर बॉयज़ अच्छा स्कूल था तो वो एडजस्ट। फिर 12th में जो है आप लोगों ने स्टूडेंट्स में छोटे सर सुसो देते खून के दिन में बॉयज़ का प्रिंसिपल दिने सब का सुसो ले के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। तो मैं वार्डन देन अब इंसान में दो तरीका होता है जहाँ ये करियर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यंग बच्चे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक होता है आपका मतलब स्कूल फाउंडेशन को मैं क्या लग गया आप 5th में क्या लग रहा 6th अच्छे में पढ़े हैं, 7th अच्छे में पढ़े, 8th अच्छे में पढ़े हैं, तो फिर आपका जो है माइंड उतने हिसाब से खेत वाले हवा तब मैं जब सुन रहा ना सिंपल स्कूल में सिंचेस पे जब से 10, 11, 12 ना एकदम प्रेशर आ गया कि एक तो मुझे इस दुनिया के साथ फाइट करना है, मतलब अपने एजुकेशन लाइन में चैलेंज करना है। दूसरा मेरे पास उतना नॉलेज था नहीं, मुझे ना सो वैसा ना ले कितना मैं 12th ना मैं इतना मेहनत चूस बनिया मेहनत चूस वैसा ने फर्स्ट टाइम ना ले पूरा इंटायर डिस्ट्रिक्ट लेना मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन में मेडिकल में पास हो गया। उसके बाद किलेंगे सम तब शायद यहाँ डॉक्टर गुस्से वकाला ना इतने थी ने सोंगे ब्रदर ना भी नो में तो ब्रदर ना जम्मू से ना जम्मू वकाला जम्मू सोचते थे मेरे साइंस जीएम साइंस कॉलेज में मैंने पढ़ा। बट अब क्योंकि मैं उतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड का तो हूँ नहीं इकोनॉमिकली, अब मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मैं 10+2 के बाद में MBBS और इंजीनियरिंग के लिए मैं डेडिकेटेड 1-2 साल फोकस करके मैं उसमें जाऊँ, वो भी नहीं था। मैंने बोला अपने आप में कि मैं ग्रेजुएशन को यंपो में MBBS से इंट्रांस पहुँचता हूँ। समहाउ 3 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने MBBS का इंट्रांस दिया, नहीं हुआ। और हमारे साथ एक तो डॉक्टर है जिन्होंने 2nd ईयर 3rd ईयर में MBBS में जाके वो आज किसी एनिमल के डॉक्टर में है, किसी ह्यूमन वाले डॉक्टर में है, क्यों समझ। बट मेरा नहीं हुआ। बट मेरा फोकस ये था जब मैं इस तरह से कंपटीशन में लगते रहा इस बार अक्सर मैं नूर ऐसे को बता UPSC तैयारी जो करने मेरा एक आदत था कि इस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, किताब खरीदना। आज भी आप मेरे अभी यहाँ नहीं है ऑफिस में, ले वाला ऑफिस में देखो आया है 100+ बुक्स, पढ़ता नहीं हूँ, शौक है, पढ़ने का मन करता है, बचपन का याद आता है, तो वो सारी चीज़ें जो है शायद एक दिन मुझे पढ़ने के लिए मौका मिले। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है यानी कि हमारे में वो दिन रात का हिसाब नहीं होता है, कोई सुबह शाम का हिसाब नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। हम कल के लिए नहीं बोलेंगे, हम आज ही सॉल्व करेंगे, उस वजह से शायद हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। उसके बाद जब साइंस कॉलेज में हमने जम्मू में ग्रेजुएशन किया तो करते करते ये सारे करते थे। देन वन फाइन डे 2006 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन होने के बाद इंसान को हमेशा झटका मिलना चाहिए। लद्दाखियों को क्या होते थे ST कैटेगरी में एक बॉटनी, एक zoology, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स,
मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में सीट मिलते थे। देन अनफॉर्चुनेटली मैं जो है 4th पे रह गया साइंस में, नहीं मिला। मेरा फ्रेंड जो है अभी समर इन केस हमारे +2 लेके तो उनको मिला, तो फिर हमने सोचा अब ये करियर यहाँ पे तो नहीं रुकेगा, है ना। क्यों सोमसाना वी आर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम भोपाल चले गए। कहाँ हमने ये सोचा, देखना मेरा सब्जेक्ट था इधर बायोलॉजी ना, इधर zoology और बॉटनी, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बायो साइंस में फोकस ज़्यादा देता था। क्यों सोमसानी थे, मैंने बोला नहीं, हमें जहाँ zoology और बॉटनी मिलेगा वही जाएगा। हमारे कुछ ग्रुप चले गए बेंगलोर में, तो हम चले गए भोपाल में। भोपाल असोसिएशन में 2 साल वहाँ हमने zoology में ये क्या कहते हैं, ये कोशिश की है कि क्या क्या कर सकते हैं, तो हमने पीजी करके देन वी केम बैक टू जम्मू। जम्मू आने के बाद, क्योंकि स्टूडेंट को एंड नहीं होना चाहिए, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स मतलब अपना अपना चॉइस होता है। जैसे मेरे दोस्त है मरकिब का है, he left middle of his PG degree and he wanted to serve as a teacher, तो टीचर में सेलेक्ट हो चला गया। बट देन उस वक्त मैंने उसको बोला था, शायद he remember that, कि मैंने नहीं बनना है टीचर, ठीक है। मैं हालांकि मेरे पास में कोई बैकअप नहीं था, बट इंसान में एक यूथ जो है, एक कॉन्फिडेंट यूथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, आपके पास लिमिटेड नॉलेज होगा, आपके पास लिमिटेड इकोनॉमिक बैकअप होंगे, आपके पास लिमिटेड फैमिली सपोर्ट होंगे, बट यू हैव टू बी स्टूडेंट जो खुद है उसको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने आप में दूसरे के साथ प्रेजेंट करने में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, गलत चीज के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए, ठीक है। तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से देन आफ्टर 2008 आई केम बैक टू जम्मू। तो जम्मू हमारे लिए एक भगवान की धरती की तरह है, फॉर नॉट ओनली फॉर मी, फॉर इंटायर लद्दाखीज। हम जम्मू यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम वहाँ मिलते हैं, एक धनवंतरी लाइब्रेरी है वहाँ पे, ते लाइब्रेरी ना हम क्या करते हैं, हमने ये मैंने जब केस किया है, मैंने पिक्चर भी देखा है, मस्ती भी की है, बट हमने क्या किया, हमारे ये कंधे से ना किताब का झोला हमने कभी नहीं हटाया इसलिए नहीं है, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। जब आप झोला साथ लेके चलते हो आपको याद आता है ना। अब एक साइड से मस्ती करते हैं, बट साथ साथ में ये भी याद आता है, यार तू ये इतना बोझ लेके घूमता क्यों है। उसके बाद हम एक फ्रेंड सर्कल था, हमें फ्रेंड सर्कल था, हम डिस्कशन करते हैं। अक्सर बता डिस्कशन इतना इम्पोर्टेंट है ना, ट्रोलिंग बोलते हैं। हम शाम को डेडिकेटेडली 2 घंटा जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने तैयारी शुरू की, ठीक है। हमने कोई प्राइवेट कोचिंग नहीं ली, ठीक है, प्राइवेट कोचिंग नहीं ली, गवर्नमेंट का जम्मू यूनिवर्सिटी में जो मिलते थे उसमें घुस गया, है ना। तो हम शाम को डिस्कशन करते थे और डिस्कशन पे लिटरली लड़ाई करते थे कि भाई तूने बोला वो गलत है, मैंने बोला वो सही है ना। इंसान होता है थोड़ा सा, तो वैसे करते करते मेरा तो थोड़ा सा गाइडेंस बताया, तो माय ब्रदर वाज ऑलरेडी पे केस में एग्जाम देते थे, तो फिर मैं भी पढ़ गया उसमें, ठीक है। हम एक ग्रुप पढ़ गए, मैं अकेला नहीं, मेरे जैसा बहुत सारे, तो पढ़ गया। तो हमने 1 साल जो है 2008 to 9 डेडिकेटेडली हमने इसी जेकेएस के लिए पढ़ा, जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब सिर्फ बस अभी 5 मिनट है, ठीक है। फिर हुआ क्या है, अब आपको फिर पढ़ना है इकोनॉमिक्स, बेसिक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड अदर करंट अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, वो आपको पढ़ना है। हम क्या करते थे, एक तो अच्छे मैगजीन जो है उनकी गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। सीनियर्स लोगों से पूछते थे भाई आप लोगों ने लास्ट 5 ईयर में क्या पढ़ा है, तो हम भी वही फॉलो करते थे। हम खाने के लिए जरूर नहीं होगा, हम मैगजीन जरूर खरीदते थे, जो द हिंदू की न्यूज़पेपर है तब की 5-6 रुपए की मिलते थे, आज तो पता नहीं 15-20 रुपए के होंगे। ऐसे करते करते फिर हम जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो हमने ऐसे पढ़ा, ऐसे क्यों पढ़ा, मतलब एकदम वो बगल की तरह पढ़ा कि कोई दिन रात के हिसाब नहीं है। जम्मू यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुबह 8 बजे पहुंचना और शाम के 9 बजे निकलना, उसके बाद घर में वो स्टूडेंट दाल और चावल बना के खाना, फिर रात के 12-1 बजे तक पढ़ के वही किताब के साथ सो जाते, ठीक है। फिर दोबारा यूनिवर्सिटी हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारा फाउंडेशन कमजोर था,
क्यों समझ में? हमारा फाउंडेशन कमजोर था, हमने बोला फाउंडेशन कमजोर हुआ तो क्या हुआ, हम पढ़ के दिखाएंगे, है ना। और हमने कोई तूफान कोई किसी से वो तो लिया नहीं। देखा जाए तो मैं एक zoology, बायो है, केमिस्ट्री उतना मेरा बैकग्राउंड था, बट देन मैंने लिया एंथ्रोपोलॉजी, बच्ची थी यहाँ पे, एक अलग से सब्जेक्ट लिया मैंने वहाँ पे, एंथ्रोपोलॉजी लिया। फिर बाकी जो करंट अफेयर में जितने ये 4-5 इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये करंट अफेयर 2-4 वो तो वैसे भी पढ़ना पड़ता है। ये पढ़ने के बाद फिर वन फाइन डे हम देते हैं अपने +2 लेक्चरर के एग्जाम, नहीं +2 लेक्चरर से पहले हमने दिया प्रीलिम का। प्रीलिम में दिया तो प्रीलिम में बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, तो फिर मेरे ब्रदर ने बोला कि ऐसे हो गया होगा, मैंने भी सोचा शायद ऐसे हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद इन बिटवीन मैंने +2 का पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला इंटरव्यू दिया, ठीक है। इंटरव्यू दिया, उसमें मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे केस के इंटरव्यू में कैसे था। वहाँ एक मुझे पैनल मिला तो देयर वर 4-5 मतलब प्रोफेसर्स होंगे, यूपीएससी के चेयरमैन होंगे, समहाउ आई मैनेज इट वेल, ठीक है। उसका मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, जो भी हुआ है। उसके बाद मैंने प्रीलिम के बाद मेंस लिखना शुरू किया, शायद पता नहीं, जब मेंस का मेरा चौथा कि 5वां पेपर है, 1 फाइन नाइट नॉट इवनिंग, रात के 11:30-12 बजे मुझे फोन आता है, जिम्मेद रखता का भी केस है, तो बोलते हैं अच्छा तुम सेलेक्ट हो गया +2 में। तो मैंने सोचा यार ये तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग नेहरू हॉस्टल में रहते थे, मैं प्राइवेट एकोमोडेशन में रहते। तो मेरे भाई ने बोला यार ऐसे जलन हो गया होगा, तुझे फेल करने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए बोला होगा, छोड़ो तू पढ़। तो मैंने समझा फोन तो उतना था नहीं, पूछा नहीं, फिर मैंने बोला यार ऐसे मजाक कर रहा था, छोड़ो। तो सुबह द एक्सेप्शन का पेपर आया, तो आई वाज अमंग द सेलेक्टेड लिस्ट फॉर द +2 लेक्चरर, ठीक है। उसके बाद जब मेरा लास्ट 2-3 केस का पेपर था, वो बोलते हैं ना दिन रुकना और रात चूकना, उतने जो है मैंने अपने मकान मालिक के लिया, हर तरह की कहीं एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, वो जो ब्लैक बोर्ड। फिर मेरे भाई ने एक शर्ट और पैंट खरीद के दिया, फिर कोट भी मैंने मकान मालिक के लड़के के लिया, वो टाई लगा के गया, इंटरव्यू अच्छे से किया, देन फाइनल आई सेलेक्टेड, मैं केस में आ गया। केस के आने के बाद चैलेंज हुआ, चैलेंज तो इसमें मेंस के टाइम में, जब मैं मेंस सेलेक्ट हुआ, यूनिवर्सिटी में होता ना अपने बचपन के ग्रुप पे, कि मैं थोड़ा सा हाइट था, तो मैंने बोला यार डीएसपी आप लोगों को अभी लगता होगा बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने भी पढ़ लिया वहाँ डीएसपी। अदरवाइज इन दैट बैच 2011 बैच आई एम अमंग द टॉप इन द लद्दाखीज, ठीक है। तो मैंने वहाँ पुलिस बढ़ गया, तो मैं उसके बाद मैं मंत्री के पास पहुंचा, यूपीएससी तो पीएससी बहुत सारे जगह में हो नहीं पाया। फिर मैंने बोला यार किस्मत में यही लिखा होगा, देन आई चूज टू बिकम अ डीएसपी, है ना। तो मेरा यही कहानी है, मेरा बच्चों का कहने का मतलब लास्ट 2 मिनट है कि भाई ये बाई चांस कभी नहीं होता है, आपके दिमाग में यू हैव टू बी वेरी फोकस। अब अगर आप माने जम्मू या श्रीनगर, वो 8वीं के बाद बच्चा वैसा होता है मुझे ये करना है वो करना है, हमारे यहाँ थोड़ा सा वर्जन 2 चलता है। मान लो 10th के बाद अभी तो सब कुछ फैसिलिटीज है, हम एक टारगेट लेके जाना चाहिए, है ना। हम बचपन में लिखते हैं माय एम इन लाइफ, माय हॉबी, वो सारे आपके 10th-12th के बाद पूरा उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसी स्टेटस या उसी स्टेज से निकले हैं, और हमें भी याद है हम जम्मू में थे। मुझे अब हल्का सा याद है कि मैंने कहा देखो पहले शर्मा जी के कैंटीन के पास देखा था, एंड आई वाज टोल्ड कि काल हैज गिवन +2 एग्जामिनेशन, काल का अभी इंटरव्यू पेंडिंग रहता है जेकेएस का। सो फ्रॉम दैट place now he is in Zanskar serving as the first SP. Then I got put up in I am Siraj I think here we have students from all the government school, especially higher secondary school Phed and Padum. Then again there was हमारा कि अगर आपको कुछ बनना है तो you don't need that fancy school, hi-fi, चलो coaching, guidance मसाले। अगर आपके अंदर वो जज्बा है, मतादर्शी हो, work hard in silence and let your success make the noise. So now moving to the next speaker we have is Miss Pema Chodar. जिन्हें दक्षा मता काले मतलब हमने देखा है कि सोसाइटी में हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इसी 2 आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं। बट Miss Pema Chodar has chosen a very different career path. She is a model and as I told you
she started this company called Mountain News Management. तेरे गलू शेयर के अंदर ये आइडिया के तेरे गलू शेयर के अंदर इन अच्छे सोच Julius Amala, respected parents, our wonderful organizers, and all the young people, youth of Zanskar. I'm truly honored to be here today at the Envisioning Zanskar Summit, first edition. I mean, hopefully this continues. My name is Pema Shrijon, and I pretty much grew up here in Zanskar, just like most of y'all, I was a very, very ordinary kid growing up. I was very introvert, shy, kind of girl. I mean, modeling is something I never thought of. In fact, I didn't even know what modeling was then. But it just happened, after I moved out of Zanskar. I am a founder of Pema Care in Mountain News Management, but today I do not want to talk about my verticals. I want to talk about the girl I used to be growing up in Zanskar. I would just go home and then back to school. I did not make any friends. Like I told you, I was very, very introvert. Ngate chelkan yotte school amane thopa majo kanji ngarang chikudul kanji. But then one thing nge nakuni chichi yotte kau kita nga chimo sokse jidong chimek jo jera nga sosek jo jera samjet ba. But tip kang pada me thinking nga chimo jo jera nga sosek jo jera. But luckily, my parents nga chupat pena lamdo na silpin. But lamdo na silpin nga chap dance na isu chomet pin nga singing na met pin man chang nga isu involved met other than just regular studies. And I was not even topper in my school. But life na changes ka news na nga 10th tuition paduma tuition tatin nga tuition sa ne khete na nga third position. Like na first position you can design. Take करने कहते ना like ना I don't know मतलब चितों की खींच सोगी okay ना चितों की जो नीचे रात देते and luckily ना कितना टाइम इसमें Bangalore रखा था my parents से and then it was a whole new different world altogether. I got to exposure so much in just 2 years. 11, 12 Bangalore जो जनिपुर exposure से I mean, I remember I cried again, I wanted to come back home, and then maybe I go to Jammu, Chandigarh, or Nathapata, Chhattisgarh. Because in Bangalore, life was so good. Even in Bangalore, I was coming to Pahala. I was in Bangalore, I was going to my path to meet you. In this social media time, I was so connecting each and it was very, very challenging for me those 2 years. I cried every night. But I'm really grateful today that I went to Bangalore for my higher studies and then I got those exposure and then I am what I am today because of those hard times. And then life, I don't know, when you have a big dreams, no matter what it is, life just happens, it just opens doors for you like someday. You just have to keep going and then keep dreaming and keep chasing. I think that's the mantra like all. And in life, modeling also starts. One day I was just, this and modeling jab pata nahi tha. I was just around the market in Bangalore. It's called NG someone from the Zara chain. So Zara is an international brand. So someone from Zara chain came up to me and I was literally scouted on the road, hey, can you order for Zara, work for us, and then it just happened that way. And from then, they told me one particular sentence that changed my whole perspective of myself. Zanskar yo thinking, atang tozuk shiyo, chang pada chama mano bahala tezani chang meeting social media tracking manba. So then they were like, if we really think you can fit for this brand and then please, model for us. And then I just went and then that just changed my whole life. And after that, I really, really started liking
modeling. I love being in front of the camera. And I never stopped. And I continued, and then after I came back to Ladakh, I used to get a lot of DMs, Instagram messages from women. Actually, now jadi rapat kita tu cerita kazo model dia orang agency nak kazo apply to shoots ka kazo dia orang tu tu mampu yang aku. So after being in the industry, like fashion industry for almost 10 years, road industry na those things, I really wanted to give back to the younger generation. Ladakh Laisam shoot chokan mampu yang because of the beautiful landscape that we have, and we used to have. We had this gap. The talent agency was made plus after 18 years in it. They used to fly models from all the way from Mumbai, like from another cities to Ladakh. Thinking is something, I can really help these young talents. Kazuksha, I just started with the Instagram page. I did not even register the company then, in 2023. So it started doing really well. I just started with like 2-3 models initially. And I was so happy that I was able to help them and groom them in a very, very good way. I used to get a lot of compliments from the Mumbai agencies and other agencies that I work with. So Oluksha started now. It's been just 3 years, and today I have more than 20 talents in my company, and I'm able to give them good work in Leh and also in Delhi because Khaniyala school or college in Delhi, so I'm able to give them work outside in Leh and Ladakh also. And yeah, I'm really grateful that I'm able to help a lot of young talents. And likewise, I would really want to scout talents from degree college also, like I told the other day to the organizers also. And kya ka tusu kayot na, if you think you have that potential in you, if you think you want to do something different or be a part of the fashion industry, not just model but makeup artist, stylist, what not, even a designer, you can always reach out to me or my company. I would love to help. Thank you. Thank you so much. Title come करने के लिए. So the next speaker is Shehnaz Parveen. तेरे यहाँ एक अजूबा जैसा है. नती का पैनल बना के देना. स्पीकर जो 4 हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. तो मैं स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन तैयार रखिएगा और अपने क्वेश्चन टू द पॉइंट. ज़्यादा रिंगो महुरा आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा अगर वो करेंगे तो अंगता टाइम को सेव सकते हैं. सो नाउ आई पास द माइक टू मिस शेहनाज. Respected guest and all the organizing committee and dear students, अस्सलाम वालेकुम जुले. मेरा नाम शहनाज परवीन है. मैं एक इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर हूँ. मैं बिलोंग करती हूँ लद्दाख के एक फरफ्लंग विलेज से जो कि सांको कारगिल लद्दाख है. तो मेरा जो ताइक्वांडो का जर्नी है वो 2013 से स्टार्ट हुआ था. हमारे स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुई थी कि इंडोर स्टेडियम में ताइक्वांडो सिखाया जाएगा. हमें नॉलेज ही नहीं था गेम के बारे में कि ये गेम होता क्या है. फिर हम वहाँ देखने गए थे कि ताइक्वांडो होता क्या है. जब हम इंडोर स्टेडियम पहुँचे तो वहाँ पे कुछ लोग किक्स मार रहे थे. फिर हम एक दूसरे को देख के ऐसे हंसने लगे कि क्या किक मार रहे हैं, हम कैसे करेंगे इसको. फिर उसके बाद एक लड़की बोली कि चलो अंदर देखते हैं क्या बोलते हैं, हम भी देख लेते हैं अगर हमसे हो पाए तो. फिर जो ही हम अंदर गए फिर हमने उनसे बोला कि सर हमें भी सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. फिर एकदम से एक आवाज़ आया करके. फिर जब हमने साइड में देखा तो किसी का स्ट्रेचिंग खोल रहे थे वो लोग. फिर हम आपस में दोस्त एक दूसरे को देख रहे, भाई ये तो मुश्किल है, यहाँ से कैसे भागेंगे. फिर उसने बोला कि देख लेते हैं थोड़ा देर बैठ के. फिर हमारे कोच ने बोला वो लोग सीनियर्स है, आप लोग अभी जूनियर्स हो, आप लोग का ये पार्ट धीरे धीरे आएगा, उससे पहले आप लोग को ताइक्वांडो के बेसिक सिखाया जाएगा. फिर हमने वहाँ पे डे 1 पे थोड़ा बहुत किक्स किया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया. फिर हम घर आए, अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसे से हम आज किक मारने गए थे. फिर मेरी मम्मी ने मुझे क्वेश्चन दिया कि एक किक मार के क्या ही करना है,
जैसे हम लड़कियों के लिए नहीं होता है शायद ऐसी चीज़ें, तो पापा ने बोला क्यों नहीं होता है, लड़के कर लेते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकते, जाओ कल से सीखो, अगर इस गेम में तुम्हें कुछ शिक्षा मिल ही रही है तो करो। फिर डेली गए। 3 दिन के बाद मैं सीढ़ियों से चल ही नहीं पाई क्योंकि पूरा क्रैम्प्स हो गए थे पैरों में। फर्स्ट टाइम किया था तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी। आप सबको पता है जब कोई टूर्नामेंट आता है तो हम स्कूल में खो खो खेलते हैं, फिर उसके बाद कंपटीशन के बाद हमें कितना क्रैम्प्स होता है टांगों में, हम चल नहीं पाते। तो ऐसी चीज़ें हुआ। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं अपनी मम्मी को लेके गई थी स्टेडियम में, तो मम्मी ने बोला अरे बाप रे क्या लात मारे, मुंह पे लात पड़ेगी तो क्या करोगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, पट्टी डाल के खेल लेंगे तो क्या हुआ। फिर मम्मी ने बोला पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आ जाती है, मेरी बस की तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा मैच ज़रूर देखूंगी। फिर मम्मी साइड में बैठी, मम्मी ने मेरा कॉम्पिटिशन देखा, फिर उसमें मैंने 2 लड़कियों को नॉकआउट किया। वो मेरे लाइफ का पहला कॉम्पिटिशन था और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया था। फिर उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, स्टेट चैम्पियनशिप गई। स्टेट में मैं कंटिन्यूसली, जब से मैंने ताइक्वांडो खेला है तब से लेके आज तक मैं स्टेट चैम्पियनशिप में कभी हारी नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो हम JNK हुआ करते थे, JNK के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, तो उन सब में हम ऐसे बोलते थे हम लद्दाखी पहाड़ों में बहुत मेहनत करते हैं और हम हाथ नहीं मानेंगे, ऐसे करके डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, फिर स्टेट से मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल का सिलेक्शन हुआ था। वो स्कूल गेम्स नेशनल था, जैसे कि सारे बच्चे यहाँ हैं, आप सबको पता है स्कूल गेम्स नेशनल एक ऐसा नेशनल है तो वो स्कूल लेवल पे ही खेला जाता है। तो इस पार्ट को आप लोग मिस नहीं करना। जिसको भी जिस गेम में इंटरेस्ट है प्लीज़ आप अपने टैलेंट को उभारें और अपने पेरेंट्स को बताइए कि मेरे फादर और मदर को भी पता नहीं था कि इस गेम में इतना आगे जा सकते हैं। मैंने उनको समझाया पहले कि इस गेम में हम नेशनल खेल सकते हैं, इंटरनेशनल खेल सकते हैं, ऐसे ऐसे करके तब जाके उनको नॉलेज मिली है। अदरवाइज आप सबको पता है स्पोर्ट्स को लेके लद्दाख में बहुत लेक ऑफ नॉलेज था पहले, अब तो नहीं है, अब तो हम लद्दाख के टॉप पे है। तो उसके बाद नेशनल 2016 में मैंने पुणे में खेला था। उस टाइम फर्स्ट टाइम मैंने मैट देखा था, मैट जिस पर हम फाइट खेलते हैं। उससे पहले हम रोड पे ट्रेनिंग करते थे और हमारे पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं होता था, हम लोग बस ऐसे ही ट्रेनिंग करते थे। 2 किकिंग पैड मिल गया, हम उस पर किक मारते थे। फिर ऐसे ऐसे करके 2016 में पहला SFI नेशनल खेला, जो अनफॉर्चुनेटली मैं 3rd फाइट हार गई थी, जो क्वार्टर फाइनल फाइट होती है। फिर उसके बाद हम घर आकर हमने अपने कोच से क्वेश्चन किया, वो जो वहाँ पे ब्लू कलर का मैट जैसा था उसके ऊपर हमने खेला, वो हमें कब मिलेगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता ही है कारगिल और कारगिल जैसे एरिया में तो स्टेडियम अभी तक नहीं है। अभी भी हम लोग सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं। हम जैसे हम खुद से मतलब जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनी थी तो वहाँ जाके ट्रेनिंग करना, या फिर ब्यामाथन करके एक जगह है कारगिल में, वहाँ ऐसे ही ट्रेनिंग करना, और हमारे पास एक स्पेसिफिक जगह ही नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम हमें छोटा सा एक हॉल मिला है ट्रेनिंग करने के लिए, वहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं। तो हम सब लद्दाखियों को एक चीज़ प्लस पॉइंट होती है, हम हाई एल्टीट्यूड पे है, तो बाहर के लोग यहाँ हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और हमारे पास एडवांस में ही हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग है। तो बाहर जाके जब हम खेलते हैं तो हमारा स्टैमिना इतना नहीं पड़ता है जितना बाहर वालों का पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फिर नेशनल खेला। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट नेशनल में 2017 में मेरा मेडल आया था। 2013 से लेकर 17 तक मैंने पूरी मेहनत की थी और उस जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला था कि हमेशा होगा मेडल आएगा, मेहनत करो, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। तो 2017 में पहली बार मैंने और मेरे फादर ने पापा का ASI का प्रमोशन का पार्टी और मेरा मेडल का पार्टी साथ में किया था। फिर उसके बाद 2020 में मैंने एडमिशन लिया था MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में। मेरा स्कूलिंग कारगिल से हुई 12th तक। फिर ग्रेजुएशन के लिए मैं MDU यूनिवर्सिटी गई थी हरियाणा में। वो यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी है जो मेरे को बहुत सपोर्ट किया एकेडमिक्स को लेके। मतलब मैंने उनको 2021 में पहला गोल्ड मेडल दिया था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जिसकी वजह से मेरा ग्रेजुएशन पूरा फ्री हो गई थी। और कंटिन्यूसली मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जब से मैंने एडमिशन लिया अभी तक मेरा 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो उसके
पास जाके अभी 2020 में मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख की पहली फीमेल एथलीट बनी थी जिसने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। और जर्नी में स्ट्रगल बहुत होती है। आप सबको मेरा वो जो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चाइना की बात करें तो मैंने 2020 में ट्रायल दिया, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ। अब मुझे 2021 में दोबारा ट्रायल देना है तो मुझे दोबारा अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। 2021 में ट्रायल दिया, फिर पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। फिर 2022 में ट्रायल दिया, फिर पोस्टपोन हो गया। फिर मेरे फादर को मेरे कोच ने बोला इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो रहा है, इसको बाहर से कोच वगैरह हायर करके दोबारा ट्रेनिंग कराओ, नहीं तो ये क्वालिफाई नहीं होगी। फिर मेरे फादर ने अपने गाड़ी वगैरह सारा कुछ बेच दिया और बाहर से 3 लाख देके एक कोच लाया, उसके अंदर मेरे को ट्रेनिंग कराया और मैं 2023 में दोबारा क्वालिफाई करके इंडिया को चाइना में रिप्रेजेंट करके आई हूँ। उसके बाद जो है हंगर बढ़ती जाती है ना हमारे अंदर की, और अचीव करना है और खेलना है। पहले जब हम नेशनल जाते थे तो लद्दाख को हमें ऐसे देखते थे अरे ये क्या खेलेंगे। अब जब हम नेशनल जाते हैं तो ऐसे बोलते अरे लद्दाख वाले भी आए हैं। तो कंटिन्यूसली मेरा सेकेंड टाइम हिस्ट्री क्रिएट किया मैंने 2025 जर्मनी में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट 2027 कोरिया है। आप सब प्रे करना कि मैं उसको भी क्वालिफाई करूँ और लद्दाख को और आगे लेके जाऊँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू शहनाज, थैंक यू वेरी मच। आपके पेरेंट्स को हमारा सलाम। मुझे लगता है कि अगर हर किसी को ऐसा पेरेंट्स मिले तो देन स्काई इज द लिमिट। So moving forward, now next we have Siring Gapel Swale. Sine Siring Gapel Scholar jona kurang sidin nyampu kedna mata laras pe phumula kedna ma center ko se to kurang organization mission approve करते। अभी मैं भी इनडायरेक्टली इनसे जुड़ा हूँ क्योंकि इनका जो फेसबुक ग्रुप है उसका मैं भी एक पार्ट हूँ। मैं देखते रहता हूँ कि टाइम टू टाइम कौन कहते कुछ भी अपडेट आता है स्टूडेंट से रिलेटेड, चाहे स्कॉलरशिप का हो, चाहे अब्रॉड स्टडी जो चाहिए मौका इंडो या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इंडो, ते समझे ना को लास्ट आपको जो सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा खुद पढ़ते पढ़ते इतना सोसाइटी के लिए कर रहा है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। तो इसलिए 2000 ताने गपल क्वेश्चन भी होगी कि आइडिया वो पूछ ही सवाल है कि पढ़ते पढ़ते दूसरों को भी साथ लेके चलना है, ऐसा आइडिया क्यों आया और इसी के साथ प्लीज local language like my mom preference tamu then my student ke also local language preference tan chika ha magona master nadi hindi student ta daksa college mo la na gazuk shedi ta malab silen chu mara ko facebook silen to yam chito chu na diksan ba ko chi ngara silcha din lekin du gazuk shedi na kezena nubrana karam sanskar to ma ko ya to kezena chang thong mana yuzena chang silkan ta ko met ka mai abala chang silkan men lekin kezena na ta kezena gazuk shedi silva kya yo ne silva kya स्कूल ना डिजाम चोज को मैं करके जाता था डिजाम ता ना हाई सेकेंडरी लेवल के पर टू में को लेको तो नुब्रे ना एस्टर 1 2 में आ जाता था ता ना समय में को ना चमा चको ना हा कला ना टू टू चमा ना सेकंड भी फर्स्ट भी क्या ना समय तो बा तो किरी स्कूल अच्छे चना रोल नंबर था तो तब कुछ होगा ना फर्स्ट लेकिन क्या पता नहीं तो लदा को मैं क्या दंडू ता फर्स्ट भी दो लदा ना बिना इंडियन ना बिना वर्ल्ड लेवल का बिंदु वो तो बा दसा लगा तदे टाइम में से ना लगा चिक नंबर कब्जा रहा ताते सिना ना जनरल किरण तो दसा पता में तो एग्जाम चिक तांगो से युद्ध ना किरण बेसिक पता दसा सुना सु करियर का जैसा ना किरण से इंग्लिश पर मेडिकल ओ नीट तो भाई आईटी जो इंजीनियरिंग जो आईटी तो भाई इंडिया तो भाई सीडीएस तो सिर्फ रिजर्वेशन ता नी सम्मेलन तो इनकी ताकत ना क्या कहते हैं खरीद तो डिवीजन क्यों देना एग्जांपल दो वहां सिर्फ खरीद तो क्यों लिया कभी क्यों चीज देना क्या डिजाइन इंटरेस्ट हो ताना तो फ्यूचर को शे तो पर दिखना फोन जी ना आईफोन चीज तकून को फ्यूचर ताना शायद इंडिया तमानी कि लेफ्टिनेंट में लगे वो इसका मान इस बार गन लो चुप करेगा तास्तिना मेजर जनरल मता कि इवन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे मौका ही तो खास लाभ देता ना जिसको कानो जना हां देखो ये कितना तुझी मार का क्लास के तो बेनिफिट को शो एडवांटेज को शो ता नीट ता मची नीट ता
कोई प्रिपरेशन एकदम थोड़ा सेफ डाउट तो मोटिवेशन बोलतो यहाँ को पता नहीं चलता ताकि असल तो नीट दाना इंडिया में बेस्ट मेडिकल कॉलेज है शेनो किराम जरा एमबीबीएस शब्द डायरेक्ट गलत डॉक्टर है शेनो ये डायरेक्ट डॉक्टर है ना थोड़ा होता ना हाँ ताकि संभाल तो करियर तुझे का पर्सपेक्टिव में हाँ बोलो पर रोड है को मैं एग्जाम जीता हूँ खर हम जस्ट एग्जाम की तरह ले समझा किराम ना ले वो तो क्या ना मार हाँ बोलो मतीस पे ना कैसे ना नीट आई टी चाहिए तम तरह ना पता नहीं देना जो ताना मला तसंग संस्कार है मतलब इनका छपेक में पंगराम चिपको ना गले बिना जुट से ना करकिला सुन यम नोरे मस्ता ना यम जमदम जो जुट संका थारे मरे क्या के जना ता दिन दिया है तो का संस्कार ता तना जो ना सम ना बले थारे मरे नी टाइम हम वेस्ट एनर्जी हम वेस्ट ता यम ट्रिक संस्कार हम कान जिया खोन जो छामी चुप हाँ नीला टाइम में जो सिर्फ शर्चें नहीं लोग वो संस्कार हम चार को खत्म नहीं हो ये ना दूध जो योग देना टाइम में दे दो से योग होगा फाउंड सब बस देना चाहिए कैसे ना जेन्युइन कैसे ना कॉलेज ना योग से मिला बहुत टाइम में तो ये वीडियो जो सिर्फ 3 एग्जाम ना एनजे एग्जाम भी दो एलिजिबल कैंडिडेट दिसुक शिनो ध्यान से मैं जो तना दिसुक शिनो करो लद्दाख में चूजा एलिजिबल चलो होगा हाँ ता इंटरेस्ट करने चूजी तो चीज ताजा देते थी ना मैं एकदम सोचता कि ड्रूम आपको जगह तो ना तो डायरेक्ट मैसेज होंगे ऑन टू ऑन कॉलेगा स्पेरा तो समझा देना जो देते तो स्टेनलेस ने दे जाएंगे स्टार्ट हो ता दिस दिन अकेले ना ओ ताना तो से बया एम्स तसा एम्स से ना हमको डिस्कशन जो एम्स कि एम्स चीज जो है एम्स चीज जो है हमको ना पता आंसर सीजन डॉक्टर इंजीनियर टीचर दो चीजें जो तो कंसेप्ट में मरी सर का रियलाइजेशन समझते ना गजो समझना क्या हटे संस्कार हटे ठीक चुन चूज मन को जना गा खरा हटे ना यो देना खरा तो मन से जान लो पा जान एक ना इक्लियर खरा तो सेंट्रल फ्रेज तो चिंगा में तो दे संख्या ना दू बोलते बट ठीक ता हटे चप्पो जन खरा पहला opportunity को देख रहा नहीं चल पा दसा नकीला देख रहा दसा थोड़ा ट्रेल का चिप पता गा की नेकोला गजम चिप पता देना संख्या में की बेस को क्या अब क्या गजम चिप तो सोचता था देने का नहीं जा सुन सर देने का नहीं वो दिखे कैसे ना करियर चूज जो हम एक्सप्लोर जो पर सर मीडिया डियरडो साइंटिस्ट बाग साइंटिस्ट सिपे नचना मीडिया पोस्ट एग्जाम में मीडिया यो सोच छूने का मना छूने का टारगेट जो से ना होते चीज़ होता लद्दाख से ना दे मतलब पता नहीं कौन कंपटीशन समा कॉमन जो चीज़ है ना दे तो ग्रुप फेज़ मीना ता शर्ट से हदीस तरह ना शर्ट दे तो चुका ता कोई चूज़ आदमान आता ना सीधे तो जुकता ना ते तीन प्रिपेयर जो चिपा जो ग्रुप गूगल जो भी नो पा समझा बाकी करियर गाइडेंस देना तो मैं वो शर्ट करूँगा स्कॉलरशिप करूँगा मैं फलानी शर्ट इंटरनेशनल लेवल का मराठों से नेशनल लेवल का मैं वो शर्ट लेकिन ता ठीक है टाइम कॉन्सेंस ऑफ शर्ट मैं लेकिन दसा खेला मिशन आपने बता सर वेबसाइट में देगा उसका पूरे डिटेल में सिंपल में डिटेल सुझाव है वो मैं नहीं दे कॉन्टैक्ट डिटेल कर देना मैं रीच आउट करना ता लास्ट पे गजन चूथा में कमा मैं तो मैं सिर्फ वाली दिमाग में लूज़ ना कर ता ओते पर्सपेक्टिव में अच्छी क्या एग्जांपल का मैं जरा सो sama मैं सिर्फ कमजोर चल मैं एक्सक्यूज नो sama नहीं समझ जो जना क्या घंटा से मैं पिक्चर जिसतोस घंटा से मैं लेक्चर जिनो समझा दिमाग कमजोर रास्ता नहीं सुबह यो तो सब तो खुनमा टाकू तो पूरा नेचुरली टक्के इज्जत मैंने दिमाग कमजोर रास्ता kan यो सब तो जो जना मैं तो इंटरनेशनल लेवल का तुझे नो नेशनल लेवल का छोटा छोटा तुझे नो जैसे ना तुम सुनो लेकिन मत ना हाथ टू हाथ चना इवन ना जानते हैं इंटरव्यू सिंगापुर से ना वो जितने ना क्विज सेंटिंग से ना 5 हो ते टू नीस तो ते ना फास्ट दिन बता दो क्या चलो सिर्फ खत्म दे जाएगा लेक्चर अटेंड करना क्लास में एग्जाम को बस एग्जाम की तरह लेना है बस देना सिंपल देना जो तस्वीर सामने नमना दिमाग में इतु यूज़ ना करना क्या पिक्चर जिस ना शक्ल हो वाह दाम क्रिकेट इंडिया ने पाकिस्तान से ना हो सब आवाज सुन क्या पता था धोनी ने कितना स्कोर किया कोहली ने कितना स्कोर किया अगर आपके दिमाग में सच में कमजोरी है तो वो भी याद नहीं रहना चाहिए ना उस टाइम पे आप फोकस है इंटरेस्ट है तभी आपका दिमाग होल्ड कर पा रहा
पिक्चर जितना हीरो सुध हुआ हीरो से नहीं हुआ चीज सुध सुसाइड पूरे क्या टीचर चाहिए तो सब पिक्चर जितना तुझे किलो कहाँ इंटरव्यू चना तार दक्षिण दिन यहाँ स्पीकर जी ने चिक शतकान जी किलो पच्चीना मंगसा तो शक्ति में जो देख यार क्या ना फोकस करो सुच आगे पीछे होता है थोड़ा दिमाग लेकिन हार्ड वर्क को कोई बीट नहीं कर सकता ठीक है ना जाना ना बोनस को जैसे नुब्रा सीता ना लंदन तो मौके को डे टाइम में काम मेट्रो का जैसे ना यूनिवर्सिटी सुनते नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम तो डे टाइम में पुलिस से फोर्थ रही दाना आईटी इलेक्शन जैसे इवन इंटरनेशनल एग्जाम ये sama tu sama natang kam ni samja natang na hard work na discipline को बोलना चीज sama possible tu बाकी kiri ची क्वेश्चन डायरेक्ट करना दे आंसर आंसर को ठीक है जो जरा टाइम कांस्टेंट हो इस वजह से या चले थैंक यू श्रींगा पहले तेने दसंगता के ने इतने क्वेश्चन आंसर सेशन को स्टार्ट मारे तेने दारे नहीं जरा जोला क्वेश्चन को कितना शॉर्ट बोल से तेने चीज जरा क्वेश्चन को कितना शॉर्ट बोलना मतलब टाइम बोल से कितना होता है मस्को दे तेने yang सीख जरा ले मता के ना करियर काउंसलिंग पर दिनिंग ता प्रोग्राम जो